Good evening, viewers. You're watching To The Point. I'm Preeti Chaudhary. Let's take you now to the latest news that is coming in, and it is not good news. Second time over in just about a month's time, rain has battered the hill state of Himachal. Flash floods, landslides that have been triggered, many being swept away in these flash floods. The count that has come in just in the last 24 hours is alarming. It's worrying. We don't want to sound alarmist, but over 41 people have been swept away or buried or killed in the flash floods that have the state of Himachal Pradesh has witnessed in the last 24 hours from now. We're going to cut across to the Chief Minister of Himachal Pradesh, Sukhwinder Singh Sukhu, to get a larger picture in terms of what is going on, where the relief and rescue operations were concerned. Just about a month away, arterial roads were swept away. The state of Himachal set back at least 2 decades, and with what is witnessed now is only a bigger brunt on what the state had been witnessing over the course of the last 1 month alone. There's been incessant rainfall, especially in areas of Mandi. There has been a cloud burst which has swept away many in the flash floods. 7 people swept away in the flash floods. Till now, the total count stands at 41, which could be inching towards 50 because many unidentified bodies also been recovered this evening. But having said that, we're going to cut across to the Chief Minister of Himachal Pradesh in just about 2 minutes. But let's get you the latest in terms of the ground reports coming in right now. Houses submerged, cars trapped, trees uprooted. The hill states of Himachal Pradesh and Uttarakhand are in the grip of the monsoon fury. Unprecedented heavy rains over the last 24 hours have triggered landslides and cloud bursts in both states. Many people were killed after a Shiva temple collapsed in the Summerhill area of Shimla amid heavy rainfall. A large number of devotees had gathered at the temple to offer prayers on the occasion of Sawan when the disaster struck. इसके बाद अब रेस्क्यू और राहत और बचाव कार्य का काम जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है और टीमें जो हैं वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन वही है कि कितना, क्योंकि ये संभावना, आप इस तरफ जरा पेड़ों को देखिए, ये संभावना जो है वो लगातार यहाँ पे बनी हुई है कि कोई पेड़ जो है वो कहीं नीचे की तरफ ना गिराए। पिछली बारी की आपदा ने जहाँ जान माल को कम नुकसान पहुँचाकर संपत्ति को और संपदा को ज़्यादा नुकसान पहुँचाया था, इस बारिश ने जो 24 घंटों से लगातार हो रही है, मुझे लगता है काफ़ी जिंदगियों को हमारे से छीन लिया है। कि हमारी प्रयास है कि किसी तरह जीवन को जो दबे हुए हैं कुछ जिंदगियों को बचाया जा सके। Joining me right now is the Chief Minister of the state of Himachal Pradesh, Sukhwinder Singh Sukhu. Appreciate you joining us, sir. बहुत शुक्रिया कि आप हमसे जुड़े चीफ मिनिस्टर साहब। सबसे पहले सुखविंदर जी, आप हमें बता सकते हैं कि अभी क्या स्थिति है? 1 महीने पहले ही सर मैं आपसे मिली थी भुंतर में, तब आपने बताया था उस वक्त कि जो डैमेज लाइफ और प्रॉपर्टी को बहुत ज्यादा था उस वक्त, पर इन टर्म्स ऑफ लाइफ कम फेटालिटीज हुई हैं। पर जो पिछले 24 घंटे हैं सर, उसमें कहा जा रहा है कि नियरली 50 फेटालिटीज हुई हैं अभी तक। देखिए, कभी भी बारिश से इतनी ज़्यादा मौतें नहीं हुई थी। पिछली बार जो 7 से 11 जुलाई के बीच तबाही का मंजर था, उसने संपत्ति और संपदा को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया था। उस समय हमें टूरिस्टों को बाहर निकालने का बड़ा काम था, हमने निकाले भी, 15,000 गाड़ी को भी निकाला। लेकिन आज एक दिन में बारिश के समय हमें नहीं लगता कि हमारे जीवन काल में कभी भी 50 से अधिक जाने गई है, और अभी कुछ और जाने की सूचना मुझे प्राप्त हुई है। मैंने अभी हाई लेवल की मीटिंग की है, अभी रात को फिर एक और मीटिंग हमारी है। मुझे लगता है कि काफ़ी नुकसान हुआ है और ह्यूमन लॉस काफ़ी ज़्यादा हुआ है। उस दृष्टि से लैंडस्लाइड्स के कारण आज सुबह ही शिमला के नज़दीक एक शिव मंदिर में तकरीबन 22-23 लोग थे, जिसमें से 8 लोगों के शव निकाल लिए गए हैं। शिमला के नज़दीक फागली क्षेत्र में 5 लोगों के शव निकाल लिए गए हैं। सोलन से कम 7 लोगों के परिवार, एक ही परिवार के 7 लोगों जमी दोज हो गए। तो काफ़ी जगह, मंडी में अभी 19 लोगों की मौत की खबर हमारे पास अभी पहुंची है।
तो तकरीबन 50 से अधिक मौतों की सूचना की मैं पुष्टि अभी करता हूँ। इससे अधिक भी जाने की संभावना है। सीएम साहब, ये जो आप हमें काउंट दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि 50 की आपको कॉन्फर्मेशन है और उससे ज्यादा भी ह्यूमन लाइफ लॉस हो सकता है इस 24 घंटे में। सर, आप हमें बता पाएंगे कि इतना ज्यादा लॉस टू लाइफ कैसे हो गया सर 24 घंटे में? देखिए, लैंडस्लाइड्स हुआ, कुछ जगह बहुत तेज बारिश से लैंडस्लाइड्स के कारण पेड़ गिरे, पेड़ अपरूटेड हुए और उन्होंने घरों पर आकर तबाही मचाई और मलबे और स्लैश ने पूरे घर बर्बाद कर दिए। लैंडस्लाइड्स के कारण बहुत ज़्यादा मौतें हुई है, जिसके कारण अभी जो सूचना प्राप्त हो रही है उसमें और इसलिए कह रहा हूँ कि 12 से 18 लोग शिव मंदिर में अभी फंसे हुए हैं, जिनकी जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है उनकी जीवित रहने की उम्मीद कम होती जा रही है। और पूरे हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में इस बार जहाँ काफ़ी पानी आया है वहाँ 4 से 5 के करीब मौतें हुई हैं। तो कई जगह से भी सूचनाएं 24 घंटे में इतनी ज़्यादा सूचनाएं पहले कभी नहीं आई है। पिछली बार मैं खुद ग्राउंड जीरो पर था, इस बार भी मैं खुद अपने इस रेस्क्यू ऑपरेशन को देख रहा हूँ, तो हर जगह से यही आ रहा है कि अब इस ज़िले में इतने लोग मिसिंग है, इतने लोग निकाल लिए गए और इतने लोगों का कुछ पता नहीं चला है। तो आज रात अगर बारिश और तो भाई रहती है, बरसती है, तो मेरा यही अनुरोध है कि सब लोग जहां लैंडस्लाइड से पहले थोड़ा सा पता लगता है पत्थर गिरने लग जाते हैं, उन घरों को छोड़ दें, घरों में रहें। और अभी सड़कों 1200 के करीब हमारी सड़कें अवरुद्ध है लैंडस्लाइड्स के कारण। तो अगले 2 दिन में हमारी जो स्थिति है वो सड़कें खोलने की, उनको हम अगर बारिश रुकेगी तभी खोल पाएंगे, वरना और लैंडस्लाइड होते जाएंगे। तो हमारा यही कोशिश है कि सब लोगों को से हमने अनुरोध किया। पिछले कल ही मैं शाम को जब मैंने मीटिंग ली थी, सारे स्कूल शिक्षा संस्थान बंद कर दिए थे पिछले कल ही। तो आज सुबह से ही नुकसान का जायजा जब मैंने लेने निकला तो जी, मौतों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। ये हम अलार्मिस्ट नहीं साउंड करना चाह रहे हैं सीएम साहब, पर आपसे ये पूछेंगे कि जो पूरे हिमाचल में है सबसे ज्यादा जहां पर आपदा है, सबसे ज्यादा अफेक्टेड एरियाज कौन से हैं? आपने जो शिव मंदिर का जिक्र किया, सुबह से रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन चल रहा है, वहां पर आप कह रहे हैं अभी भी 15 लोग फंसे हुए हैं और जैसा जैसे वक्त गुजर रहा है उनका सर्वाइवल चांस कम होता जा रहा है। एनडीआरएफ की कितनी टीम्स हैं सर? लास्ट टाइम मैं थी, मैंने देखा था कि आपने एयरफोर्स की भी मदद ली थी। क्या आप मतलब आर्मी से या एयरफोर्स से फिर अर्ज करेंगे गवर्नमेंट को कि उनको भी इन्वॉल्व करें? नहीं, शिव मंदिर में सुबह से आर्मी है, आईटीबीपी है, एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है, हिमाचल पुलिस के कर्मचारी है, सब लोग है, वहाँ के लोकल लोग भी है, सब लोग काम कर रहे हैं। हमने सुबह ही मदद ले ली है उनसे, सारी मदद हमने उनसे ले ली है। सर, वर्स्ट और अफेक्टेड इस एरियाज प्रकार कौन हमने से सब हैं प्रकार सीएम से साहब? मदद लेकर और डिस्ट्रिक्टों में मंडी, शिमला, सोलन, हमारे जो हमीरपुर, ये सब लोग इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, बिलासपुर, तो ये सब जगह छोटे छोटे बड़ी तेज बारिश से काफ़ी बड़े लैंडस्लाइड हो रहे हैं जो पहले कभी नहीं थे। सीएम साहब, ये जो इस साल हुआ है वो कभी देखा नहीं है हिमाचल ने। 1 महीने पहले जो पूरा जान माल था इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी थी सर, बहुत ज्यादा लॉस हुआ था, सड़कें बह गई थी किलोमीटर्स की, पर इतना वहां पर फेटालिटीज नहीं हुई थी। उस वक्त आपने कहा था कि सरकार को सोचना चाहिए कि एक नेशनल कैलामिटी का दर्जा दे। आज जब 24 घंटे में 50 के ऊपर मौतें हो गई हैं, तो कैसे मदद मांग रहे हैं कि क्या सरकार को देखना चाहिए, नेशनल कैलामिटी का दर्जा देना चाहिए? अभी आपको सारी मदद मिल रही है सेंटर से सर? मैं तो पहले ही अनुरोध कर चुका हूं कि इसको नेशनल कैलामिटीज का दर्जा देना चाहिए। जिस प्रकार की, क्योंकि ये तो मेन रोड, नेशनल हाईवे, स्टेट रोड, एमडीआर रोड, पंचायतों के सभी रोड बंद है। पहाड़ जब गीले हो जाते, पिछले मार्च अप्रैल से कंटिन्यूसली धीरे धीरे बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है। गर्मी का तो इस बार मौसम ही बहुत कम आया है, तो इसलिए अभी जब धूप लगेगी तो कुछ और लहासे गिरते हैं।
ये सेटल होने में कम से कम 10 दिन लगेंगे, जब धूप अगर पूरी तरह रहेगी। तो मेरा ये है कि इसको नेशनल कैलेमिटी का दर्जा देना चाहिए, और पिछली जो केंद्रीय टीम की रिपोर्ट है उसके तहत फटाफट हमें इंटीरियम रिलीफ की पहली किस्त तो जारी होनी चाहिए, ताकि हम रिस्टोरेशन काम को तेजी से कर सके। दो आखिरी सवाल करूंगी सीएम साहब। जो स्टेट में आपकी भाजपा है, उन्होंने बार बार बोला है कि अनप्रिपेयर्ड थे। पहली बार जब आपदा आई, पहली बार जब बादल फटा, तब सरकार अनप्रिपेयर्ड थी। 1 महीने के बाद फिर ऐसा हुआ है और एक दिन में 50 मौतें हो गई हैं, उसके ऊपर आंकड़ा जाएगा। नहीं, मुझे ये देखिए, अनप्रिपेयर्ड, बारिश के लिए क्या प्रिपेयर्ड चाहिए? लैंडस्लाइड जब आता है तो तेज बारिश के बाद आता है। और जो भारतीय जनता पार्टी के जगत प्रकाश नड्डा जी से मेरी बात अभी हुई है, उन्होंने अपने स्टेट के बारे में पूछा है। जो लोकल लोग हैं उनका स्टैंडिंग स्लोगन्स होते हैं, उन्हें इसमें आपदा के समय राजनीति नहीं करनी चाहिए। एक अभी 20 दिन बाद विधानसभा सत्र आएगा, उसमें करनी चाहिए। ये राजनीतिक रोटियां सेकने का वक्त नहीं है, ये जीवन बचाने का वक्त है, ये लड़ाई लड़ने का वक्त है। ये चुनौतियां जो पहाड़ के सामने आई है, हिमाचल प्रदेश के लोगों के सामने आई है, उससे लड़ने का समय है और एकजुटता से लड़ने का समय है। राजनीति करने के लिए हमारे पास अभी 4 साल और है, हर विधानसभा सत्र है। इस समय तो वो किस प्रकार की स्टेटमेंट देके अनप्रिपेयर्ड है, वो खुद नहीं जानते कि जब नदियों में पानी आता है, बारिश को कोई रोक सकता है? कोई ऐसी तकनीक है कहीं कि जो बारिश को रोक सकता है? बारिश तो भगवान के हाथ में है। अब जहां बारिश तेज होगी, लैंडस्लाइड आएंगे, पेड़ गिरेंगे, वहां कहाँ पेड़ गिरेगा, कहाँ बारिश इतनी तेज होगी, वहां कैसे पता लगाएगा? कोई ऐसी साइंटिफिक फार्मूला होता तो मैं भारत सरकार से लेता। तो इस प्रकार की बात करके वो राजनीतिक रोटियां सेककर अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। तो ये राज्य के भारतीय जनता पार्टी का ये है, और वहाँ देश के गृह मंत्री राज्य के संवेदना के बारे में पूछ रहे हैं। हमारे हिमाचल प्रदेश से राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, वो हमेशा बात कर रहे हैं कि कैसे हिमाचल की स्थिति है, हमारी क्या मदद चाहिए। और ये लोग यहाँ आके ऐसी इस प्रकार की बयानबाजी देकर बारिश को रोकने की बात करते हैं। प्रिपेयर्ड किस चीज के लिए होना? बारिश तो कहीं भी आ सकती है, कैसे आ सकती है? कभी इसका फार्मूला पता है कोई? सीएम साहब, पिछली बार हजारों की तादाद में टूरिस्ट फार्मूला तो जी सीएम साहब, पिछली बार हजारों की तादाद में टूरिस्ट फंसे हुए थे। आपने जैसे 15,000 गाड़ियां 2 दिन में निकाली थी मनाली से। इस वक्त क्या बहुत सारे टूरिस्ट हैं जो अभी भी फंसे हुए हैं? क्या उनमें फैटेलिटीज हुई हैं सर? देखिए, टूरिस्ट हमारी देव संस्कृति हिमाचल प्रदेश के टूरिस्टों को मेहमान मानते हैं। जो फंसे हुए वो सब सेफ है, उनको सब सेफ निकालेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। इस बार तो हिमाचल के लोगों के ऊपर ये लैंडस्लाइड्स हुआ है, तो इसलिए हम हिमाचल के लोगों का भी रेस्क्यू कर रहे हैं। अभी रात को भी बैठकर हम ये सोच रहे हैं कि कैसे उनको निकालना है, ताकि एक आधी जिंदगी भी बचा सके। जिंदगी बचाना हमारा दायित्व भी है और हमारा राज धर्म भी है, कोशिश हमारी है। और भारत सरकार की मिलिट्री भी हमें मदद कर रही है, हमारे आईटीबीपी भी मदद कर रहे हैं, और लोकल लोग और हमारे सभी मिनिस्टर्स अपने डिस्ट्रिक्ट्स में जाकर सारी मदद का जायजा ले रहे हैं। इससे जो हम कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। ये हिमाचल की जनता और आपके जो पत्रकार बंधु सब भी आके देख सकते हैं। सर, ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ऐसा भी होता है, जो टूरिस्ट हैवी स्टेट्स होती हैं, कि जो लोकल पॉपुलेशन होती है वो सफर कर जाती है, सारा फोकस टूरिस्ट पे हो जाता है। तो लोकल्स की मदद इस वक्त पूरी की जा रही है। क्या नंबर्स आपने फ्लैश किए हैं जहां पर लोग रीच आउट कर पाए आपको? क्योंकि बारिश अभी लगातार चल रही है और जैसा वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से आ रहा है कि अगले 24 घंटे भी चलती रहेगी ऐसे ही। हमारे डिजास्टर के नंबर है, हमारा 1100 का एक नंबर है जहां आप लगा सकते हैं। लेकिन अभी जो लैंडस्लाइड जो है वो गांव के क्षेत्रों में हुई है। एक क्षेत्र है ममली, वहां एक परिवार के 7 लोगों का लैंडस्लाइड हुआ रात के 3 बजे। एक उसमें बचा, मैं उनसे पूछने गया, 3 बजे कहते बहुत तेज बारिश हुई जिसके कारण लैंडस्लाइड हुआ और उसमें 7 परिवारों की 7 लोगों की मृत्यु होगी। तो अब उन सब चीज़ों से निपटने की कोशिश की रही है। जिनकी जान बचाई जा सकती है उसकी युद्ध स्तर पर हम जान बचा रहे हैं। सभी प्रकार के हमारे पास जो भी चीज़ें हैं उसको हमने इस्तेमाल कर लिया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, सर बहुत शुक्रिया कि आप हमसे जुड़े, लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं, आपने 10 मिनट निकाले, पर थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस एंड गुड लक सर। इट्स अ हेवी बैटल दैट लाइज अहेड ऑफ यू इन द नेक्स्ट फ्यू डेज टू गेट योर स्टेट बैक ऑन ट्रैक। 50
and counting. That is what the Chief Minister of Himachal has just told us. Over 50 deaths in just the last 24 hours, and he says there are many more. Urging the government to say and judge the calamity as a national calamity. The army is involved, the air force is involved, multiple teams by the NDRF. Let's cut across to our reporters. Manjeet Sehgal and Ankit join me for a quick update. Manjeet, over 50 deaths in 24 hours in the state of Himachal Pradesh, with many, admittedly by the Chief Minister, still stuck. Yes, Preeti, the figure is continuously rising and it is expected to rise more. But the big question is why these flash floods are taking place and why these rivers are in spate. We spoke to some of the geologists as well. They say unscientific cutting and unchecked cutting of the slopes and while widening the roads, be it the Kalka-Shimla National Highway or be it the Chandigarh-Manali National Highway, is the root cause when the debris and the muck was dumped into the rivers. That also raised the water level. So this is what the geologists told us. But the worst hit are the people who were living in kacha houses, in shanties. The administration does say that they have provided all the amenities to the people who have been displaced, but still many people have been left high and dry. Many roads are closed. Remember, these two national highways have also been blocked by the landslides at various places. That has resulted in short supply of essential items like milk and bread at many places. Roads, as the Chief Minister said, over 1,400 roads are still blocked and damaged. The state is really facing a tough time, though the administration has shut all the schools and colleges for a day, but the rain is continuously taking place and occurring. We are in Mandi, where we can see this entire town has plunged into darkness. There is no power. At many places, the power outages are taking place. No power, no electricity. I'm going to just come back to you. I want to cut across to Satyendra for a brief comment. Satyendra, right now, as the Chief Minister told us, 15 people still stuck at the Shiv Mandir. And as time passes, their chance of survival also fall. What's the latest that you're picking up in relief and rescue? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको मौसम का हाल दिखाता हूं, तस्वीर दिखाता हूं कि देखिए किस तरह की बारिश हिमाचल में हो रही है। जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, उस रेस्क्यू ऑपरेशन को बार-बार बीच में बंद करना पड़ रहा है। दरअसल इस बारिश की वजह से जिस जगह पर ये ऑपरेशन चल रहा है, वहां पर लगातार लैंडस्लाइडिंग हो रही है। बड़े-बड़े पेड़ हैं। पहाड़ को अगर आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जब इतनी हैवी बारिश हो रही है और एक बार लैंडस्लाइड हो गया है, यानी कि मिट्टी वहां से दरक चुकी है और उस मिट्टी पर बार-बार जो है जब पानी आता है तो वो मिट्टी एक बार फिर से दलदल बनकर नीचे आती है और उसकी वजह से खतरा यह होता है कि यहाँ पर देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, वो पेड़ भी गिर सकते हैं। और पहले से ही चूंकि ये मंदिर एक जो है पहाड़ की नीचे जड़ पे बना हुआ था और उसके नीचे भी गहरी खाई है और सेंटर पॉइंट पर ये मंदिर था और जो मंदिर है जब ये लैंडस्लाइड हुआ तो मंदिर तो खिसक कर नीचे वैली में चला गया, लेकिन उस मंदिर के नीचे एक सराय बनी हुई थी जिसमें लोग पूजा पाठ कर रहे थे। जैसा कि हिमाचल के मुख्यमंत्री ने भी अभी बताया तो उसमें 20 से 25 लोग फंसे हुए थे, 8 शव निकाले जा चुके हैं। तो कुल मिलाकर जो ये मौसम है, तस्वीरें आप देख सकती हैं, शिमला में ही मैं मौजूद हूँ। उस रेस्क्यू ऑपरेशन को फिलहाल 3 घंटे के लिए बंद किया गया है और जैसा कि मुख्यमंत्री ने भी अभी बताया था कि अगर ऐसा ही मौसम बना रहा तो जो लोग उसके अंदर फंसे हुए हैं उनके जान के बचने की संभावना बहुत शुक्रिया सत्येंद्र for joining us. We don't want to sound alarmist, viewers, but the indications or confirmations we are getting in from the hill state of Himachal, the second time in 1 month, but this time in just 24 hours, it's seen over 50 fatalities, 50 people dead and counting. And where the prediction in terms of the weather is concerned, the next 24 hours, Himachal Pradesh is on an orange to a red alert. We're going to keep our cameras focused on the very latest in terms of relief and rescue, but right now, all prayers for the hill state of Himachal Pradesh.